have for almost 3 days had the privilege of listening to a large number of members of this Honourable House on the motion for thanks to the address of the President. The Prime Minister would be replying to the debate tomorrow. I have only a few points to make in a brief intervention on some of the issues which are covered in the address of the Honourable President. Needless to say that I stand in support of the motion proposed to thank the Honourable President. The current year is the second year of this government, and the President's address really represents the policy, the program and the future roadmap as far as the government is concerned. Obviously, in that roadmap where the government should correct itself, and in some areas if we have been found to be lacking, the opposition legitimately has a right to point out those areas. But I think one difference in this debate and the ones we've had in this House over the last decade or so, the motion on thanks to the President debates earlier, when the UPA was in power and we were on the other side, were predominantly influenced by one core agenda. And the principal issue in every year in the debate used to be corruption. And in fact, if we take out the time which members used to consume in highlighting various scams, some of us had even difficulty in counting the number of zeros when we added to those scams. I think the high point of the present debate over 3 days is No, please. No, please. No. Not allowed. Sit down. By David. Sit down. No. Not allowed. Don't disturb. Sadhu, sit down. Mr. Rangarajan, take your seat. Rangarajan, let him complete. Sit down. Thank you, Mr. Rangarajan. I am extremely grateful. No, please. Sit down. Sir, in the last 3 days, I was waiting for members to speak on this issue. But I found that this was one agenda, fortunately, which is no longer a matter of core concern, because obviously there has been, if not an elimination, a significant decline as far as levels of corruption is concerned. And therefore, understandably, it's not a matter, as Mr. Rangarajan says, of core concern anymore. No, I don't say like that. It is already there. Madhya Pradesh is there. Everything is there. But more important is secularism. Whether we can keep this country united under your leadership. Okay, please. And I think, sir, if members have to struggle to invent an allegation of corruption, it speaks volumes of how the atmosphere and the environment in this country has changed. Let me start by what the Honourable Member said and what some of the members have been referring to. I won't go into detail because a week ago this House had an opportunity to discuss the issue at length. How do we keep this country together? That's the fact that you have mentioned. So we obviously belong to different ideological formulations. And all of us have a right to believe that my own roadmap that I have for this country is the best to keep this country together. I have no doubt in my mind, I said it in the earlier debate also, that
almost all groups represented in this house are mainstream political parties who are a part of India's parliamentary democracy. The unity of this country is paramount. And therefore, if we are to keep this country together, then obviously we have to make sure that the space for those who speak in the breakup of this country itself, that space, if not narrowed down, should be really completely eliminated. But in the name of freedom of thought, freedom of expression, I have no hesitation in saying that both my party and the government is absolutely clear that anybody who raises a voice against the sovereignty and integrity of India, we are certainly against them. We will discourage them. We will ask the law to take their own course. And I would urge honorable members that rather than come out with subsequent explanations that we don't agree with them, they should be one in denouncing such activities as we have seen. The honorable member Mrs. Patil, even last time I said I have always maintained, and therefore you need not assume that my charge is against any particular group. I said in this house that I am one of those who believes that Congress has been a mainstream party, and I was personally very surprised when I saw some statements supporting a fringe, which we saw. The honourable member Mrs. Patil just now mentioned that at King's College in London they were asked about Hyderabad or about JNU. I can tell you that you can have people who have concern for some of the activities that happened there, but most people in this country, an overwhelming majority, does not support the idea of eulogizing those who in your state blasted the city of Mumbai in 1993, to organize some events in support of those people who symbolized that destruction, or for that matter, throwing up the idea of breaking this country into pieces. Ultimately, nobody has anything against a particular student who was arrested. But then what we had said in this house, that people have a right of free speech, but people don't have a right of free speech to advocate that I want to advocate the breakup of as far as the country is concerned. Therefore, where does the threat to unity and integrity of the country come? Madam, let me remind you of what I have been saying. I expect mainstream political parties like the Congress to be in the forefront of being against these people. So please don't do anything which adds respectability to these people. No, please. I have not taken any name. I don't know. ये क्यों आजाद साहब आपकी भाषा में सोच रहे हैं कि टोपी इनके सिर पे है? मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो उल्टा मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस मुख्य धारा की पार्टी है. Madam, let me, sir, leaving this issue apart, several members use these debates to make a number of comments about what is the government's policy and what efforts we are making to bring back black money into the country. No, please. Please, please. कहा गया है तो मैं हिंदी में बोल देता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है. बार बार ये कहा जाता है कि काले धन के विषय को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. Sir, I normally speak in both languages, so for your benefit, I
बार बार ये विषय उठाया जाता है कि काले धन को लेकर सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है, और ये चर्चा काफी आगे बढ़ी। जब से ये सरकार आई है पिछले 21 महीने में, एक विषय था बड़ा स्पष्ट रूप से कि HSBC के बैंक में जिन भारतीय मूल के लोगों के खाते थे उनकी एक लिस्ट सरकार के पास आई। आजाद साहब ने कहा उसको सार्वजनिक कर दो। आजाद साहब, उसको सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है कि जब अदालत में चार्जशीट फाइल होती है और उसमें से बहुत अधिक मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में डाल चुके हैं, और जो कोर्ट में डालते हैं वो सब सार्वजनिक हैं, उनके नाम भी छपते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस नहीं पड़ा, आने वाले कल में पड़ सकता है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया से बाहर जाकर आप सूची सार्वजनिक करते हो तो अंत में जिन लोगों के नाम उस सूची में है आप उनकी सहायता करते हो। योर एडवाइस इज अ बोनाफाइड एडवाइस, but it will land the government of India, whether it was headed by the UPA or the NDA, into a trap. Your government of... थे तब हम आप नहीं मानते थे, तब ये कहते थे कि कांग्रेस को कुछ छुपाना है इसलिए नहीं कहते। मैं ये नहीं कहता था कि आपको करने चाहिए। Sir, if you want to make it, if you make it an inter-party issue, all your cooperation treaties have a covenant that the information is being provided on a particular condition, and that condition has to be complied with. And one of the conditions is that you make the names public when the case is filed in court. If you start using it for a political purpose, the other day in the other house, for example, in the Income Tax Act, there is a provision that I can't make anybody's information of search or investigation or even assessment proceedings public. In the other house, there was a debate. I said, I'm not going to make it public because there's a prohibition in the Act. And therefore, once a case is filed, it can be made public. But if you make it public other than by a procedure which is not prescribed in that agreement, then you disentitle yourself from getting any evidence internationally. And if you don't get evidence internationally, you will never be able to prove the case. So the best way of helping the accused is breach the treaty, disentitle yourself from getting the information, and then the accused goes scot-free. That is not an advice we are following. We are proceeding in most of those cases. Assessments have been completed, criminal cases have been filed. Those names are already in public domain. I have no hesitation in sharing the names which are already in public domain. But we will strictly follow the procedure that is given in courts. In the Liechtenstein case, wherever prosecutions were required, we have filed them. We opened a window for declaration of monies if people had abroad. Many people have declared, some may not have declared. By 2017, the G20 initiative, the FATCA agreement that we've entered into with the US, the increased emphasis on sharing of information globally now. A lot more information is going to come almost by the day. And those who have monies abroad but did not declare them, once their information is known, and in some cases some information is coming to us, investigations are proceeding, and now the penal provisions of a very strict law will be applicable against them. Some comments were made with regard to the income disclosure scheme that we have just announced. Now compare it with what had happened in the past. In the past, you had several schemes, and I can tell you, it is not necessary that all these schemes succeed very well. In a general parlance,
लोग बात करते हैं तो कई बार कहते हैं आप डिक्लेयर कर दीजिए और लोग अपने आप डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बेरर बॉन्ड स्कीम आई थी 1980 में, जब आपकी सरकार बनी तो पूर्व राष्ट्रपति साहब वेंकटरमन साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। केवल 904 करोड़ रुपए आया था उसमें। 1997 में चिदम्बरम साहब ने स्कीम लाए। वो स्कीम क्या थी? और आपके नेता जब हम लोगों की आलोचना करते हैं कि कई बार याद कर लें कि उस वक्त क्या हुआ। इन 1997 you said, please make declarations of undisclosed income by just paying 30% tax, nothing more than that, and declare it at the 1987 value. 97 में you declare it at the 1987 value. Most of the declarants were minor children and women. लोगों ने अपने बच्चे और पत्नियों के नाम पर कैपिटल क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मैंने सोना खरीदा था या मैंने जमीन खरीदी थी 10 साल पहले, और 10 साल पुरानी इनकम पे टैक्स दे दिया। The honest taxpayers went to court and said, I paid tax in 1987. So if you add the interest factor, I as an honest taxpayer have paid much more. And now to this man in 97, you are giving the facility of paying tax on the income of 87 and only tax and nothing else. Somehow that decision was averted. The effect of that scheme was that the very next year, India normally has 10 to 15% tax buoyancy every year. हर साल जो टैक्स कलेक्ट होता है पिछले साल की तुलना में 10-15% बढ़ता है। तो 97 स्कीम के बाद अगले साल बढ़ा ही नहीं। ये उसका दूसरा परिणाम था। ये सब सोचने के बाद what is it that we have done to make people? We have said, if you have any income which has escaped assessment, declare it today. Over and above your tax, as of the value today, so no backdated value, as of the market value today, pay the tax plus 50% penalty. So it's not an amnesty scheme. जिसमें 50% पेनल्टी है वो एमनेस्टी स्कीम नहीं है. Similarly, we have other schemes for people whose appeals are pending, etc. I am not going into the detail. Budget discussion जब होगी तो उसमें जाएंगे. So when you make comments about the steps that we are taking from foreign black money to domestic black money to filing prosecutions and assessments, please honestly compare your own track record in this regard. Secondly, sir, a lot has been spoken. We'll have a detailed discussion as far as the economy is concerned. This is a period where we need cooperation of all political groups. We are in the midst of a situation where we are fighting a serious global crisis. The global economy is shrinking. विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था छोटी होती जा रही है. ग्लोबल ट्रेड छोटा होता जा रहा है. आप एक एक देश में जाकर जब बात करते हैं तो जो हमारे साथ कंपीट करते थे, और आप लोग सरकार में हमसे ज्यादा लंबा रहे हो, आप जब सत्ता में थे, और मैं केवल आपको दोष दूं ये नहीं, पूरी विश्व की स्थिति भी बिगड़ रही थी. मैं लेख पढ़ा करता था कि ब्रिक्स में से जो आई है वो बाहर निकल जाएगा. इट्स द वीक लिंक. टुडे दे से यू आर द ब्राइट स्पॉट. अब कई कारण हैं, उसमें मैं उसका राजनीतिकरण नहीं करता, लेकिन ब्राजील की स्थिति देखिए, रशिया की देखिए, चाइना के स्लोडाउन का इंपैक्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका देखिए. आप एक एक स्थान देख लें और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था सुकड़ती जा रही है. पहले एक व्यवस्था होती थी कि विश्व में आर्थिक संकट कभी 10 साल में एक बार आता था. आज तो रोज
वही परिस्थिति है. वी आर लिविंग द न्यू नॉर्मल नाउ इज वॉलेटिलिटी, इट इज अनसर्टनिटी, एंड देयरफॉर यू नीड टू क्रिएट फायरवॉल्स अराउंड इंडिया by which our own domestic systems are such that we can serve the people and save our economy to the maximum that we have from this global adversity. तब ग्रो करना जब दुनिया बढ़ रही थी आगे, वो सरल होता है. When the going is good, everybody is at his best. But when the going is globally challenging, you are then to sustain, and therefore our emphasis today is our services sector are doing well. Our manufacturing is somewhat recovering. Our urban demand is recovering. But then there are challenging areas. We've had 2 very bad years of monsoon. So rural demand is poor. There is agrarian crisis. So you need to put in a lot of money into the villages, into the rural areas. So जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये मैं तुलना की तरह से नहीं कह रहा. अगर इसलिए ग्रामीण सड़क अगर 27,000 करोड़ इस साल जाता है राज्यों का और केंद्र का मिलाकर, तो उससे एक फर्क पड़ेगा. अगर मनरेगा का आपने बार बार जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इट्स अ लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर, इसका मतलब आजादी के 60-65 साल बाद हमें ऐसी योजना बनानी पड़े, इसका मतलब उनका अर्थ यह था, स्पष्ट था कि अभी तक हमने किया क्या जमीन के ऊपर. व्हाट इज कि after 65 years, 60 years, if we have to conceive such schemes, it's a reflection of what we have done in the last 60 years. But then, this year, if we spend the money which we have allocated, this will be the highest ever allocations. मेरे पास पूरे एक वर्ष का रिकॉर्ड है. आप एलोकेट कर दो 40,000 करोड़ और साल के अंत में खर्च करो 29,000 करोड़. अब तो सारा खर्च हो रहा है. इंटरेस्ट सबवेंशन हम मैक्सिमम अमाउंट देंगे, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए अधिक से अधिक साधन देंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में एक संकट है. इसलिए अगर बुनियादी सिद्धांत ले लिए जाएं तो सरकार को अपने साधन उस क्षेत्र में डालने पड़ेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने पड़ेंगे. ये जो बैंक्स की आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति है, मैं इसको बहुत कोई बड़ा संकट नहीं मानता. एक चुनौती निश्चित रूप से है, और यह कोई ऋण हमारे जमाने के दिए हुए नहीं है. राजनीतिक लोग उसमें कितना हस्तक्षेप करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परिस्थिति यह है कि कितने सेक्टर हैं, कितने वर्षों से ये संकट क्या है. स्टील का संकट यह है, और सच में अर्थव्यवस्था की स्थिति है. स्टील का संकट यह है कि चाइना से सस्ता स्टील देश में आ रहा है, और इसलिए हमारी स्टील मिलों का स्टील कम बिक रहा है. स्टील मिलें संकट में चली गई हैं. टाटा स्टील जैसी कंपनी, उसकी रेटिंग भी खराब दुनिया के में हो गई, जो सबसे पुरानी स्टील की कंपनी है. सेल की रेटिंग खराब हो रही है, और लगभग सभी स्टील मिलें घाटे में हैं. जब घाटे में है तो बैंक का पैसा नहीं लौटा सकती. अब पिछले 5-7 सालों में क्या किया, अब पिछले कुछ महीनों में हमारी सरकार ने ड्यूटीज बढ़ाई, जो चाइना से सामान आ रहा था उस पर कार्रवाई की, इंपोर्ट एक्शन, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रखा. और कल जो हुआ कि जो देश कहते थे कि इंडिया शुड नॉट बी प्रोटेक्शनिस्ट, उन्होंने 260% से ज्यादा ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने चाइनीज स्टील पे. क्योंकि इस स्टील का जो इन्वेजन है आकर हमारी स्थानीय मिलें एकदम बंद हो जाएं, और वो मिलें बैंकों का पैसा ना दे पाए, जिससे बैंक के एनपीए बढ़ जाएं. लेकिन ये काम 21 महीने पहले भी हो सकता था. स्टील का संकट तो पहले से था. स्टील एक सेक्टर था. पावर, पावर के क्षेत्र में आज बिजली की पैदावार देश में रिकॉर्ड है, बिजली का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है. लेकिन जब राज्यों में जाती है तो कुछ राज्यों ने यह नीति बना ली, और मुझे लगता है इसमें एक आम राय इस सदन में बने और राज्यों में भी बने, जो हम कोशिश कर रहे हैं
कि वोट प्राप्त करने के लिए जो बिजली की दाम है वो दाम नहीं लेंगे, उससे सस्ते पे देंगे। अब ये घाटा कौन इसकी पूर्ति करेगा? या आप राज्य अपनी बजट में से करें। और राज्यों ने समझा कि बैंकों का, ये केवल उद्योगपति नहीं थे, राज्य सरकारों ने समझा बैंकों से पैसा लेते जाओ, बैंक पैसा देते जाएंगे और बैंक का लुटाएंगे कैसे। और एक सबक है हम सब के लिए, मैं उदाहरण देता हूं, मैं किसी को छोटा नहीं दिखला रहा, आप इसका आकलन कर लीजिए। राजस्थान में जब 2008 में आपकी सरकार आई तो बिजली कंपनी ने लगभग 15,000 करोड़ देना था बैंकों का, और किसी को लगा कि सस्ती बिजली देने में, घाटे में बिजली देने से चुनाव में वोट जीता जाता है, तो सीटें तो इतिहास में सबसे कम आई और वो 15,000 करोड़ 70,000 करोड़ हो गया। और 70,000 करोड़ का असर यह हुआ कि हर यूनिट पे 2 रुपए ब्याज पड़ गया, बिजली का दाम भी बढ़ गया, और केंद्र से कोई कदम नहीं कि इसको उठाएंगे कैसे। तो अगर स्टील नंबर 1 पे है घाटा करवाने में, तो स्टेट डिस्कॉम्स का दूसरा रोल है। आज 15 से ज्यादा डिस्कॉम्स ने जो सेंट्रल स्कीम हमने उदय योजना इस संकट में से बाहर निकलने के लिए बनाई है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा, हाईवेज। अब जितने भी हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तब चलेंगे, उनको कौन बनाएगा? सरकार तो नहीं बनाती, हम आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, प्राइवेट पार्टीज को देते हैं। हर एक पहले 17 टेंडर जो इस सरकार ने दिए, हाईवे सेक्टर की यह स्थिति छोड़कर आप लोग गए थे कि पहले 17 टेंडर्स का जवाब देने के लिए नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स केम। अ बूमिंग सेक्टर वाज वर्चुअली किल्ड। दिस इज हाउ यू आर मैनेजिंग इट। And therefore, in last year's budget, I started putting a lot of money. अब आप कहते हैं बड़ा सिंपल तर्क है। I think the most dangerous calculations are only back of the envelope calculations. Your leaders also say this. अब तेल का दाम घटा। What effect did the reduction of the oil price have? वो तेल का दाम जब घटा तो उसका एक लाभ हुआ कि जो लोग पैदावार करते थे उन देशों को थोड़ा नुकसान हुआ, और जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे उनको थोड़ा लाभ हुआ, क्योंकि सस्ता तेल मिलने लगा। अब उस सस्ते तेल के बीच में जो दाम का अंतर था, हम लोगों ने क्या किया? ये 3 हिस्सों में गया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो था, मैं अकाउंट्स दे सकता हूं, वो कंज्यूमर को गया। कंज्यूमर के बाद एक छोटा सा हिस्सा ऑयल कंपनीज को भी गया। ये मार्केटिंग कंपनीज देश की जनता की हैं, और क्योंकि ये फ्यूचर परचेजेस करती थी, इन्होंने $80 में खरीदा, जब तक बेच रहे थे तो उसका दाम $60 हो गया। तो एक स्टेज पे 30,000 करोड़ रुपया ऑयल कंपनीज का लॉस हो गया इस रिडक्शन से। थोड़ा सा उन्होंने अपने उस घाटे को पूरा किया। दे आर पब्लिक कंपनीज, दे हैव शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर, प्राइवेट शेयर होल्डर्स आर देयर। और जो तीसरा हिस्सा था, हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस या एक्साइज के रूप में लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया। अब किसी ने समझा दिया आपके नेताओं को कि एक लिफाफे के पीछे गणित कर लो, और बिना समझे हुए जो आदमी तेल खरीदता है और कार चलाता है वो सड़क पे चलाता है, तो ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी उसमें से अगर पैसा चला गया, नेशनल हाईवे दोबारा जो एकदम पैरालाइज हो गए थे उनको पुनः स्थापित करने के लिए चला गया, रेलवे जिसमें एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट समाप्त हो चुका था उसमें चला गया, तो इस आर्थिक योजना में क्या गलती है? ये भी तो जितने एसेट्स हैं देश की जनता के हैं। और आज की परिस्थिति में जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दुनिया की मंदी के माहौल में धीमी है, तो जो सार्वजनिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आज हम लोग ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, ये 3 कारण इसके मूल हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो बड़ी है, और थोड़ी अर्बन डिमांड बड़ी है। और हम लोगों की आर्थिक नीतियां जो मौजूदा हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी उसकी डिमांड क्रिएट हो, किसान की जेब में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी कारण से हम लोग साधन डालें, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें, और जो ये अर्थव्यवस्था का प्रभाव बैंकों के ऊपर हुआ है उन बैंकों की आर्थिक स्थिति भी सुधारने का प्रयास करें। स्टील सुधरेगा, हाईवे सुधरेंगे,
चीनी की मिलों ने गन्ना किसान का 21,000 करोड़ देना था, आज सुधार आया, वो 1,800 करोड़ पे रह गया। तो धीरे धीरे एक एक करके सेक्टर्स को सुधारने का प्रयास करना, ये एक उसका प्रयास हम लोग एक प्रकार से करते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि कीमतें बहुत बढ़ गई। अब मैं आंकड़े भी बतला सकता हूं। आप तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन छोड़कर गए थे, और उस डबल डिजिट इन्फ्लेशन को, और यहां तो पिछले 15-16 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में चल रहा है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में चला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव में है, एक आध आइटम की कीमत अगर दुनिया में अगर तेल की, मेटल की, कमोडिटीज की, सीमेंट की, इनकी कीमतें बढ़ गई और दुनिया के बाजार में कमजोरी आ गई, तो एक दाल की कीमत बढ़ गई, तो आपको दाल नजर आ रही है, जो बाकी 40 चीजें जिसकी कीमत कम हुई पहले से, वो आपके एजेंडा में से बाहर हो गई। आज आप ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो। वर्ल्ड आप in a globally integrated economy, global prices will impact on domestic economy, and therefore there are a large number of items which impact your life where costs have gone down in the present global environment. There are some items, there could be some items, pulses for example, जिसकी शॉर्टेज हमारे देश में भी और पिछले वर्ष पूरी दुनिया में भी थी, और जिसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करके, रेड्स करके उसके दाम कम करने का प्रयास किया। आप आज 2-3 विषय केवल, आप जो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप एक कल्पना कीजिए, दिल्ली का चुनाव आया तो एकाएक समाचार आने लग पड़े कि एक विशेष मजहब के धार्मिक स्थानों पर अटैक्स हो रहे हैं। अब गलत है अगर हो रहे हैं तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था? जांच हुई, चुनाव में उसका भरपूर इस्तेमाल कर लिया। बाद में पता चला उनमें से एक एक केस पुलिस ने रिजॉल्व कर लिया। कहीं किसी ने शराब पीकर, बदमाश लड़कों ने बोतल मार दी थी, कहीं कहीं थेफ्ट हुआ था, और पूरे देश में नहीं दुनिया में उसको जैसे बड़ा राजनीतिक अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की एक छवि देने लग पड़े। उसमें से एक भी मामला, और जहां जहां कोई लोग शरारत कर रहे थे, कोई राजनीतिक व्यक्ति भी था किसी राज्य में, तो एक केस ऐसा नहीं था जो अनरिजॉल्व था। पश्चिम बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में देयर वाज अ केस वेयर अ नन वाज assaulted, and then you had somebody from Bangladesh who was arrested in the process. So this happens in the states, और उसको एक राजनीतिक कलर दे देना। अब टॉलरेंस पे अगर आपको डिबेट करनी है तो मैं तो पूरा इतिहास पढ़ता हूं। एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक चेयरमैन कौन होगा, हमने किसी कोर्स में, किसी नियुक्ति में, किसी अपॉइंटमेंट में, किसी में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन चेयरमैन कौन होगा ये इंटॉलरेंस की डिबेट है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन फाइंड। अरे आपका तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ रहा था, पुस्तक भी मेरे पास है। एक वक्त था कि अगर आपके युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई गायक गाना गाने नहीं आया तो उसको ऑल इंडिया रेडियो से डिबार कर दिया था। मतलब वो क्या इंटॉलरेंस थी? आजकल जिसका जिक्र आता है बहुत केस का, मैं उसके
तथ्यों में नहीं जाऊंगा। आप कल्पना कीजिए, मैंने जून 2013 में एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था शुड द सीबीआई बी इन्वेस्टिगेटिंग द आईबी। मैं उस केस के तथ्य में नहीं जाऊंगा, वो तो रोज टेलीविजन पे अखबार में हम लोग पढ़ते हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या कर रहे थे? हमारी देश की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक दायित्व है कि कोई सीमा पार से आता है उसकी इंटेलिजेंस रखना, उसके इंटरसेप्ट रखना, वो कन्वे करना राज्य सरकारों को। और आपने पूरी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, तो आपको इस देश का सिक्योरिटी नेटवर्क बतलाएगा कि पाकिस्तान से जो इंटरसेप्ट आते थे हम वो क्या कानूनी गैर कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करते थे, वहां हमारे इन्फॉर्मर कौन थे, हम किस तरीके से लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरीके से राज्य सरकारों के खिलाफ कोऑर्डिनेट करते हैं राज्य सरकारों के साथ। आपको ये केवल केस एक एफिडेविट बदलने का नहीं था। इट वॉज नॉट अ केस ऑफ सिंपल चेंजिंग योर एफिडेविट। शिवराज पाटिल साहब गृह मंत्री थे, होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दिया, दिस वॉज एन एलईटी ऑपरेटिव एंड अवर इंटेलिजेंस एजेंसीज वर इन्वॉल्व। यू चेंज द एफिडेविट, वी डोंट नो। When Hadley's statement came, which he had given to the FBI, the part which referred to LET, you removed it from the file, that page. You changed the composition of the SIT on a couple of occasions. You colluded, and I am making a serious charge with जो लोग actual encounter में involved थे, 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं की ताकि उनकी बेल हो जाए और बाद में वो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ गवाह बन जाए, ये प्रयास था। बट इन द प्रोसेस यू अनबेयर्ड द एंटायर सिक्योरिटी apparatus ऑफ इंडिया। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, बिकॉज यू वांटेड टू फिक्स सम पॉलिटिकल लीडर, वो रूल ऑफ लॉ था, वो इंटॉलरेंस नहीं थी। जो मेट्रोपॉलिटन जज की जजमेंट है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसको हम बिल्कुल डिसमिस नहीं कर सकते। उनकी जजमेंट के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नॉट सैक्रोसेंट। एक एजेंसी अगर गलत करे और एजेंसी एज सच नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल गलत कर सकता, हम देखते हैं काउंटर इंटेलिजेंस इसीलिए होता, इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेलिजेंस हो सकता। आजाद साहब, लेट मी टेल यू, whether it is security agencies or its armed forces in a country which is repeatedly the victim of terrorism, more particularly cross-border terrorism, our agencies and forces have to struggle in order to keep pace with those who want to subvert India. And therefore, कभी आप इसको डिस्पैशनेटली सोचिए। मैंने 2013 में अपने उस लेख में लिखा था कि गवर्नमेंट्स आर नॉट इमॉर्टल, दे चेंज, एंड आई होप वंस दिस गवर्नमेंट चेंजेस, समडे एन इंक्वायरी विल बी हेल्ड ऑन हाउ दिस कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल सिक्योरिटी वाज टेकिंग प्लेस। बट उस वक्त आपको लगता था कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं उसकी केस की डिटेल्स में नहीं जाता। अब आपने फॉरेन पॉलिसी के संबंध में विषय उठाए। आप एक बार कल्पना कीजिए कि 26/11 के बाद क्या परिस्थिति थी। 26/11 के बाद आप वो सरकार थी जिसने कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के बाद, हरारे में कॉमनवेल्थ सम्मेलन के बाद यह जॉइंट वक्तव्य दे दिया कि इवन पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। शार्मल शेख का समझौता कर लिया जिसमें वाजपेयी जी का जनवरी 2004 का समझौता था
कि बातचीत तब होगी when land is not used for terrorist activities against India. और 2004 के उस समझौते को रद्द करके शार्मल शेख का संयुक्त बयान दे दिया, जो इस सदन में चर्चा हुई कि आतंक रुके ना रुके, बातचीत चलती रहनी चाहिए। और अब आप कहते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज अनडूइंग द गुड वर्क वी हैड डन ऑन पाकिस्तान। We are compelling Pakistan for the first time to own up that an attack in India is taking place from their soil. This has never happened earlier. अमेरिका नहीं कह रहे, मैं पाकिस्तान से। आपने, मैं एक दो छोटे विषय, आपने कहा कि आप सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, ये क्या है? पहला कदम था कि इस देश के लोग बैंकों के साथ जुड़े। आपने कह दिया कि मध्य प्रदेश का, मैंने एक लेख पढ़ा है, मैंने 19 जिलों के आंकड़े मंगवाए मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया जनधन योजना का। प्रदेश में, मैं डेसिमल छोड़ रहा हूं, 153 लाख परिवार हैं, 104 कवर्ड थे बैंक अकाउंट से, 49 अब जनधन में कवर हुए। आपने भोपाल जिले का कहा, भोपाल जिले में 4,90,000 परिवार हैं, 3,75,000 कवर्ड थे और 1,15,000 जनधन में कवर हुए। बैतूल में 3,26,000 परिवार हैं, 2,68,000 कवर्ड थे, बकाया 58,000 अब कवर हुए। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब डीबीटी के माध्यम से उन खातों के अंदर पैसा जाए, उसके बाद देश में अधिक से अधिक गरीब परिवारों का बीमा हो, जीवन का हो, एक्सीडेंट का हो। और अब आपने उस दिन भी कहा, आज भी येचुरी जी ने कहा कि वाई शुड गवर्नमेंट रिलाई ऑन मनी बिल? If a bill is a money bill, then it will be a money bill. It will follow the procedure of a money bill. If it's not a money bill, then it will follow the procedure of the normal bill. So what is so unusual? The Constitution, Article 110 provides for a money bill. So any bill which imposes a taxation, and that's the core issue in that bill, will be a money bill. Any bill which only deals with expenditure from the Consolidated Fund of India will be a money bill. And it's for the Speaker to certify, oh, if there is a money bill, it is a threat to democracy. I think Indian democracy is not so fragile that every day we will see that every decision of the government becomes a threat as far as democracy is concerned. All I am urging is that this is a time where we don't need an obstructive environment in the country. And therefore, everyone, including my own friends, we have to, on some issues particularly which retain to fighting poverty, economic growth of the country, maintaining the unity and integrity, as he says, on some of these basic issues, I think our approach will have to be to work together. And in case there are differences on how we can grow faster, these are differences the government and the opposition can always live with, and these are differences which are highly desirable. And I think, sir, this is the spirit in which this government wants to function. And with these few words, I support and commend to this House that the presidential speech be accepted after the Prime Minister's reply. Okay, thank you. मैं नारी हूँ, सृष्टि का अनुपम रूप। मैं परंपराओं की जननी भी हूँ तथा उनका निर्वाह करने वाली भी।